My dear students, good morning to all of you. Hoping that you are doing good and following the government advisory notes, that is, stay home, stay safe, and please follow it strictly. And staying home, washing hands properly, mask wearing or donning of masks. Okay, so that is an advisory part from the government. Now let's come to the topic. Yesterday, we discussed the topic fire safety and prevention. Let me recap you fast so that we can carry on the further studies on the same topic. So let me show you some slides again, yesterday's slides, fast, so that you can recapitulate it. So yesterday we discussed fire safety and prevention. We discussed its objectives. We discussed what is fire, what is a fire triangle. Okay. Yes, very important. We discussed the classes of fire: class A, class B, class C, class D, class E. I told you class A is a solid fire, second is a liquid fire, C is a gaseous fire, and D is a metallic fire. So E is not exactly the any class, but it has been designated for the electrical, like some wires, some short circuits. Okay, so finally it is just a class E. So we discuss class A. It includes solid materials such as wood, paper, and textiles, right? Class B, we said flammable liquids such as petrol, diesel. Class C, we discussed gases like methane, propane, like LPG cylinders at home. Class D, we discussed as aluminium, magnesium, copper. Normally it happens during the onboard ships and industries. Okay, normally in home it hardly happen that some metallic object caught fire, because we don't have that vicinity that aluminiums, like the things get controlled in a very sharp period, but still it is a class of fire and need to be discussed. Then we discuss class E fire, okay, like electrical equipments, wires and all. We understood what is the fire extinguishing method. Okay, there are three main methods of extinguishing any of the fire, that is cooling, smothering, starvation. Cooling is a kind of we keep the fire cool, we spray the water, okay, we make it cool. And smoothing is we spread that fire with a kind of a foam. Okay, we foam is known as, there's a foam known as AFF, aqueous film forming foam. It's a kind of a foam which, on giving a thrust on that that extinguisher top, that is a kind of cylinder is there, a gaseous cylinder, which forces the water mixed with the foam to come out of the nozzle, and that is a principle known as Venturi effect. It comes like that only, makes foam. Smoothing, starvation, I told you, removing the burning material near from the vicinity of the fire. So these are the main three extinguishing methods. We discussed the extinguishing principle, that heat, fuel, and the oxygen, that is known as fire triangle. So today we will understand, we'll just go through what are the causes of fire. Okay, that's very important, we must know it. The top fire causes include cooking, 49%, open flame, 10%, heating, 9%, incendiary and arsons, 8%, smoke, 4%. Okay, personal vigilance is the best way to avoid and survive fires. कहते हैं कि जो फायर लगने का जो कारण है 49% किससे होता है, जो घर में हम खाना वाना पकाते हैं, कुछ मतलब गैस ऑन रखते हैं, हीटर्स ऑन रखते हैं, गलती से कोई कपड़ा फायर पकड़ लेता है तो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तो फायर एकदम धड़ाम से हो जाता है पूरा फायर. सिमिलरली ओपन फ्लेम्स, जहाँ पे मतलब आपने बाहर अभी विंटर जब आने वाला होता है तो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं जो डिकेड जो होते हैं, मतलब ख़राब एकदम
हम उनको चारकोल बना देते हैं विंटर्स के लिए, तो वो भी एक कारण बन सकता है, कारण बन जाता है। तो नॉर्मली जब खेतों वेतों में जो दान का जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, जो घास वास फूस जो होता है, उसको जलाते हैं हम, दैट ऑल्सो बिकम्स द रीज़न। 10% हीटिंग, जब हीट ज़्यादा हो जाता है, इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ फ्लेम। आप देख लीजिए बहुत सारे जंगलों में आग लग जाती है, खुद सुना होगा कभी आपने, ये जंगलों में आग लग गई। या मान लीजिए बाहर कोई गैस सिलेंडर हमने रखा है, वो धूप में रखा है, यहाँ पे तो फिर भी टेम्परेचर तो कम रहता है, बाहर की अगर देखेंगे तो बाहर बहुत टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए उस गैस में कोई हल्का सा भी लीकेज है या कुछ है, तो फायर पकड़ने का चांसेस भी होता है या ब्लास्ट होने का चांसेस होता है सिलेंडर का। इंसिडियरी एंड आसन्स, जानबूझ के आग लगाना, किसी को नुकसान पहुंचाना बोलते हैं ना, तो वो भी एक 8% है। और स्मोकिंग 4%, मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने स्मोक जो करता है, जो बर्निंग बड होता है, उठाया और फेंक दिया दीवार के ऊपर से, देखा ही नहीं अंदर क्या है, अंदर गैस होता है, अंदर कोई बर्निंग मटेरियल होता है, ठक से आग पकड़ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द होम। ओके, people feel the safest in their homes, right? However, residential properties are where most fires and fire deaths occur. हम फील करते हैं कि घर सेफ़ है, पूरा एकदम से हमारे लिए बहुत सेफ है, लेकिन देखा मतलब डेटा कहता है कि जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे जो रिहाइश घर जो होते हैं, वही बनते हैं, मोस्ट रीजंस बनते हैं, मतलब वो उन्हीं में आग लग जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा वहीं डेथ होती है। आपने देखा होगा कभी, आप देख लीजिए, वेरी रियरली आपने सुना होगा कि उस गवर्नमेंट बिल्डिंग में आग लग गई, उस स्कूल में आग लग गई। रीज़न है कि हम मॉर्निंग में 10 बजे आते हैं, शाम को 4-5 बजे चले जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे स्टाफ रहता है थोड़ा सा, बहुत ही कम रेयर चांसेस है, ज़्यादा अप्लायंसेस का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, हीटर्स ये कुकिंग का नॉर्मली यूज़ नहीं होता है इन ऑफिस में। तो आप देख लीजिए, सेक्रेटरीट ले लीजिए, अगर चाय वाय भी होता है, वहाँ पे चाय के वेंडर्स होते हैं, वो अपना सिक्योर करके 4-5 बजे 6 बजे निकल जाते हैं, पूरा प्रॉपर्ली सिक्योर करते हैं। लेकिन घर ऐसे हैं हमारे जहाँ पे हम शाम तक या पूरी रात तक खाना बनता रहता है, चाय बनती रहती है, डिशेस बनते रहते हैं, ठीक है, डेजर्ट्स बनते रहते हैं। तो शाम को किसी का मन किया तो नहीं, चलो चाय बनाते हैं, बनाया चाय याद ही नहीं रहा और गैस ऑन रहता गया। तो इस तरह से बोलते हैं कि रेजिडेंशियल जो होम्स होते हैं मैक्सिमम वही रहते हैं टारगेट पे फायर्स के। 97 ऑफ स्ट्रक्चरल फायर्स डेथ्स ऑकर्ड इन द रेजिडेंशियल फायर्स। बोलते हैं जो स्ट्रक्चरल फायर्स जो होते हैं ना, डेथ्स जो इस बिल्डिंग के कोलैप्स से मरते हैं, इन चीज़ों से मरते हैं, वो 97% कहाँ पे है, जो हम जहाँ पे हम घरों में हम रहते हैं। अब कुकिंग फायर्स, पे अटेंशन टू व्हाट यू आर कुकिंग। बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें जब खाना बनाते हैं तो हमें पूरी एकदम से ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, पर हम क्या बना रहे हैं। इफ़ यू लीव द रूम टर्न ऑफ द स्टोव, अगर आप बाहर जा रहे हैं किचन से या जहाँ पे आप पका रहे हैं खाना, प्लीज़ आप स्टोव को बंद कर दीजिए या गैस को नॉब को बंद कर दीजिए। डू नॉट कुक इफ़ यू आर स्लीपी और यू आर इम्पेयर्ड। आपको तब कभी भी ये कुकिंग नहीं करना चाहिए जब भी आपको थके हुए हो, नींद आ रही हो, या कोई आपका ध्यान ही नहीं है उसमें, आपको वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी वो काम करना नहीं चाहिए, स्पेशली कुकिंग। कुकिंग ऐसा चीज़ है, आपको नींद आ गई, आप सो गए, जो आपने बर्तन या कोई रखा है उसमें ओवन में या कहीं पे भी आपने रखा है, वो आग पकड़ सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। नियरली हाफ ऑफ ऑल होम फायर्स ओरिजिनेट इन द किचन। बोलते हैं कि आधे से भी ज़्यादा जो है, जो आग लगने की जो मतलब कारण है, वो हमारे किचन से ही होके जाते हैं। रिड्यूस योर चांस ऑफ ए कुकिंग फायर। हम कैसे कर सकते हैं इस जो ये आग लगती है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब ना लगे उस मतलब चांस, उसको हम क्यों, उस चांस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि आग ना लगे। बोलते हैं ना, अगर हमें सेहत का ख्याल रखना है, तो अपने लंग्स का ख्याल रखना है, तो हमें ज़्यादा डस्टी एरिया में नहीं जाना है, हमें स्मोकिंग में एडिक्ट नहीं होना है, ठीक है, और हमें प्रॉपरली वीकली या मंथली जो भी एक ओपन एनवायरनमेंट में जाके थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर डेली ना करवाए
ठीक है। दिल्ली दिल्ली जैसे शहरों में जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं तो उनको भी डॉक्टर रिकमेंड करता है कि वीकली या वो फोर्टनाइटली वो जाएं और थोड़ा सा आउट स्टेशन पे जाएं, थोड़ा सा लंग्स को थोड़ा सा रिलैक्स कराएं, जो कि एक अच्छे ऑक्सीजन से ही लंग्स को रिलैक्स मिलता है। एनीवेज, कीप फ्लेमेबल आइटम्स अवे फ्रॉम द हीट सोर्स। जहाँ पे भी हम हमारी मम्मी या हम खुद खाना पकाते हैं, हमें उसके इर्द गिर्द जो भी है, मतलब कपड़ा है, पर्दा है, कर्टन्स है, वो हमें दूर करना चाहिए, हटाना चाहिए वहाँ से, ठीक है। टॉवेल्स है। नेक्स्ट, क्लीन योर स्टोव फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड ग्रीस बिल्डअप। अब आप देख सकते हैं जब भी हम खाना बनाते हैं, आपने अक्सर मतलब ये किया होगा ऑब्ज़र्व, हम जब कुछ मतलब बॉयल मतलब ये कर रोस्ट करते हैं कुछ या फ्राई करते हैं तो ऑयल से ही करते हैं, ओबियसली घी से करते हैं, ठीक है। तो उसके छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो गैस पे जम जाते हैं, परत बन जाती है, जो धीरे धीरे अगर हमने साफ़ नहीं किया तो धीरे धीरे एक परत बन जाती है, एक लेयर बन जाती है वो ऑयल की। तो अगर मान लो हल्का सा भी वो नॉर्मल से हीट से ज़्यादा हो गया तो वो आग पकड़ लेता है। उसने आग पकड़ लिया तो जो उसकी विसिनिटी में जो भी चीज़ें हैं उन्होंने भी आग पकड़ ली, पाइप पकड़ लेती है आग, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा होना है कि क्लीन रखना है जो इसका एरिया है स्टोव्स का। या आप इसका देख लीजिए, जो हम बर्निंग स्टोव्स जो होते हैं, जो ना केरोसिन स्टोव्स जो होते हैं, आप देख लीजिए हम जलाते हैं तीली से, और तीली उसके जो नीचे एक ट्रे होता है उसमें डाल देते हैं, तो धीरे धीरे एक ज़रिया बन जाता है आग लेने का। कीप फ्लेमेबल क्लीनर्स अवे फ्रॉम द हीट सोर्स। हाँ, जो आप देख लीजिए, जो हम अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो होते हैं जिससे ना हम साफ़ करते हैं, चाहे आप कोलिन ले लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे हम करते हैं साफ़, जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, मिक्स होता है, उनको बोलते हैं ये वो फ्लेम से दूर रखना चाहिए हमें, वो हमें नज़दीक नहीं रखना चाहिए। हल्का सा भी उन्हें हीट पकड़ लिया तो नुकसान कर सकते हैं वो। आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो पेंडेमिक कोरोना जो चल रहा है हमारी लाइफ में, तो आप देख लीजिए सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि जब भी आप हाथ सैनिटाइज़ करते हैं, प्लीज़ डू नॉट गो नियर टू योर फ्लेम, क्योंकि जो हाथों में आपने सैनिटाइज़ किया है उस केमिकल से, उसमें हल्के से अल्कोहल ड्रॉपलेट्स होते हैं जो बहुत वोलेटाइल होते हैं, आग पकड़ लेते हैं वो। ग्रीस फायर्स, नेवर पुट वाटर ऑन अ ग्रीस फायर। बोलते हैं जहाँ पे भी जब भी कभी ग्रीस फायर होती है, ठीक है, उस पर हमें कभी भी पानी से फेंकना नहीं है, उसको पानी से मतलब एक्सटिंग्विश नहीं करना है, ये याद रखना है। स्मोकिंग रिलेटेड फायर, जो बोलते हैं ना स्मोकिंग रिलेटेड जो फायर होते हैं वो किससे है, कैंडल से है, ठीक है। और फिर लास्ट में कौन सा है, इलेक्ट्रिक फायर्स, स्विचेस से या नॉब कोई लूज कनेक्शंस होगा उससे हो जाते हैं वो। इम्पॉर्टेंट सेफ्टी एलिमेंट्स, बोलते हैं इम्पॉर्टेंट सेफ्टी एलिमेंट्स। आग लग गई और अगर हमें तुरंत पता चल जाता है कि आग कहीं पे लगी है, हम कुछ कर सकते हैं, मतलब हम प्रिवेंट मतलब एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं आग कैसे लगी है तो हमें कैसे पता, जब तक कि पूरा अंदर से धुआं जल न जाए, पूरा धुआं बाहर लास्ट में आ जाता है तब, या मतलब मान लीजिए एक रूम है उसमें अंदर से कुछ सब जल रहा है, दरवाज़ा बंद है, हमें कैसे पता चलेगा जब तक कि खिड़की से धुआं नहीं आएगा या कोई हीट ऐसा फील नहीं होगा हमें कि हमें पता ही नहीं उधर आग जल रही है या आग लगी है, पूरा ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए अलार्म्स मतलब बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे स्मोक अलार्म है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म है, ठीक है। एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आप बाहर जाएंगे, यहाँ पे भी आजकल इंडिया में भी बहुत जगह बहुत सारे मॉल्स में है फायर अलार्म्स बोलते हैं उनको जब भी हल्का सा कार्बन मोनोऑक्साइड का वो सेंस करते हैं या हल्का सा धुआं सेंस करते हैं, वो एक अलार्म बजाते हैं। बहुत सारा पूरे मतलब मॉल में, पूरे घरों में वो अलार्म बजाते हैं। उसके बाद उसका एक सिस्टम होता है कि अगर आपने मैनुअली जो वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम जो होता है हर एक रूम में होता है, एक नॉब टाइप का उतर जाता है, वो पानी छिड़कना शुरू कर देता है। अगर आपने वो मैनुअली ऑन नहीं किया तो उसका एक टाइम डिले होता है कि ठीक है, अगर मैंने 10 मिनट के बाद ऑन नहीं करा तो 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो देखते हैं उन पे निर्भर करता है वो कैसे उसको प्रोग्राम करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर्स, रेजिडेंशियल फायर स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स, मतलब ये सब चीज़ें जिनसे हम आग को बुझा सकते हैं, आग को रोक सकते हैं, एकदम कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों से ही।
स्मोक अलार्म, मैंने आपको बताया कि स्मोक अलार्म बोलते हैं या फायर अलार्म बोलते हैं। तो बोलते हैं ब्रीदिंग स्मोक कैन किल, जो 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 सांस जो स्मोक जो मतलब लेता है अंदर, वो टॉक्सिक मतलब रहता है और उसको आदमी को उससे मर भी सकता है। स्मोक इज़ टॉक्सिक, मतलब जो धुआं होता है एकदम टॉक्सिक होता है पूरे हमारे लंग्स के लिए, हमारी पूरी लाइफ के लिए। इफ़ यू मस्ट एस्केप थ्रू स्मोक, आपको बोलते हैं कि गो लो एंड गो अंडर द स्मोक। तो बोलते हैं कि जो जो ये धुआं होता है ये हमेशा थोड़ा सा लाइटर रहता है, तो ये ऊपर 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 उड़ जाता है, ठीक है। ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड की तरह मतलब एकदम सेटल नहीं हो जाता है नीचे। ये अभी बोलते हैं कि जब भी हमें एस्केप करना है तो हमें लेट की कोशिश करना चाहिए, क्रॉल करने की। जहाँ पे दिखाया इस व्यक्ति ने दिखाया है कि क्रॉल कर रहा है, सो दैट कि ये निकल जाए, धुआं का जो इंटेंसिटी है वो कम होके वो पास हो जाए। आर्म प्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस, ये जो अलार्म्स जो हैं ये कहाँ पे प्लेस होते हैं, इनको कैसे हम मेंटेन करते हैं। मेक श्योर यू कैन हियर द अलार्म इन एवरी प्लेस इन योर होम, हमें मेक श्योर करना है जब भी ये मैकेनिक आते हैं या जो एजेंसी आती है जो अलार्म लगाते हैं, स्मोक अलार्म्स या फायर अलार्म जो लगाते हैं, तो उनको ऐसे फिट करना चाहिए कि हमें हर एक जगह पे अलार्म सुनाई देना चाहिए पूरे घरों में, ठीक है। सो दे शुड बी लाउड एनफ एंड वेक अप फ्रॉम योर स्लीप, वो इतने मतलब लाउड होने चाहिए कि आपको नींद से भी उठा सकते हैं, वो उतना अच्छा अलार्म होना चाहिए, इतनी सिस्टम ना अच्छा होना चाहिए उनका सिस्टम। क्योंकि आजकल कंपटीशन है, आजकल बहुत सारे लगाते हैं, फैल्कॉन लगाता है, तो इसी तरह बहुत सारी कंपनीज़ के अपने अपने मतलब ड्रॉबैक्स है और बेनिफिट्स भी है। आप देख लीजिए, जैसे आजकल मैं एग्जाम्पल ऐसे समझाता हूँ, मोबाइल्स जो है रेडमी भी लाता है, वीवो लाता है, ओप्पो लाता है, ठीक है। तो हम अच्छा परफॉर्मेंस देख के ही उस मोबाइल को ले लेते हैं जो जो हमें मतलब जिसका हमें अच्छा रेटिंग्स मिलता है। तो सिमिलरली हमें जो ये अलार्म जो लगाते हैं उनको ऐसा लगाना चाहिए, हमें ऐसा चूज़ करना चाहिए उनको कि भैया आपको लगाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे सबको अलार्म सुनाई दे, प्लस कि वो इतना उसका इतना नॉइज़ मतलब इतना तेज़ बजना चाहिए, इंटेंसिटी इतना होना चाहिए कि हमें वो नींद से भी उठा सके, ठीक है। बोलते हैं चेक अलार्म, चेक दम वंस इन अ मंथ, तो हमें मंथली उनको चेक करना चाहिए, ठीक है। चेंज द बैटरीज वंस इन अ ईयर, उनमें एक बैटरी लगती है, वो आपको मैं दिखाऊंगा जब हम स्कूल जाएँ। अब स्कूल जब स्टार्ट करेंगे हम, वहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे करते हैं, कैसे फायर एक्सरसाइजेस करते हैं, कैसे हम प्रॉपरली एक ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाते हैं कि कौन पहले जाएगा, कौन नेक्स्ट जाएगा, कौन थर्ड जाएगा, कौन पानी लाएगा, कौन सैंड लाएगा, कौन फायर एक्सटिंग्विशर लाएगा। तो इसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो नॉर्मली आप ये याद रखिए कि ये सब हमें करना पड़ेगा और हमें मंथली चेक करना पड़ेगा वो सिस्टम को, और बैटरी चेंज करनी चाहिए और रिप्लेस देम, और हर एक 10 साल के बाद ना पूरे सिस्टम को हमें रिप्लेस करना चाहिए। अब हमें फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं और एलॉब्रेशन के साथ ही पढ़ेंगे हम, मतलब पूरा आपको बताएंगे कि इसका काम कैसे है, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है अंदर, क्या कंटेंट है इसका, ठीक है। कैसे कलर कोडिंग से पता चलेगा आपको कौन क्या है। सो बच्चों, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक एंड मेक यूज़ ऑफ द स्लाइड्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्लाइड्स से आपको बहुत ही इजी एंड मतलब कन्वीनियंट रहेगा सीखने के लिए। ये जो टॉपिक है, आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ रियली काउंटिंग यू ए गुड ग्रेड इन ओवरऑल परफॉर्मेंस। you must learn these things, you must at least try what are these implemented to in life, मतलब हमें इनका क्या ज़रूरत, मतलब इनका क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। और ये ऐसा टॉपिक है कि ये हमें चाहे हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, जो भी बने, चाहे कोई भी हम आर्मी ऑफिसर बने, कोई भी ऑफिसर बने हम, या कोई भी हम विषय में जाएं, कोई भी फील्ड में जाएं, ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको हर एक फील्ड में मतलब मदद करेंगे और आपको एक अच्छा इंसान बनने के मतलब का एक ये बन जाएगा, एडवांटेज बन जाएगा, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर and stay home, stay safe. Bye.